So last time we had a discussion on functions in Python. So there we have seen how to define your own function, how to write your own function, and then how to pass the parameter to the function. Sorry, what are the different ways by which you can pass the parameter to the function. Then how to call the function and so on. Okay. Now after this, we will jump to object-oriented programming. So from today, we'll start with object-oriented programming in Python. Okay. Now, I know that you people have studied object-oriented programming using Java. So I hope and I assume that कि आप लोगों को object-oriented programming का basics पता है अच्छे से. And please mute, do not disturb. What we'll try to do, we will build on that foundation. आप लोग के पास जो भी foundation है, we'll revise it and we'll build on that foundation. Okay. So let me go for a new file. Let me call it session class.py. Okay. So this is going to be your Python code using object-oriented programming. I would say OOP in Python or OOP using Python. Okay. Can you tell me what do you mean by class? Yes, what is class? So it's a blueprint to create an object. Okay, good. It is a blueprint to create an object. Anything else? Any other student? Please go on. Do not keep mum. It's a collection of objects. Collection of objects. ठीक है. What else? Blueprint which consists of set of properties. ठीक है. A blueprint which consists of set of properties only. Nothing else. से टेम्पलेट होता है जो कि हाँ, जो कि So जो कि क्या a करता class है? is a template which से वही itself is ब्लूप्रिंट है. abstract. ठीक है. Let me write a class is a template or it is a blueprint. Okay. It is a template of blueprint of what? User defined blueprint. User defined User blueprint. Okay. अच्छा ये Okay. डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा. It's a user defined template of blueprint. हाँ, जो कि ये बताएगा कि आपके ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या होगा. It's a user defined template of blueprint which I can say which describes the objects. ठीक है, जो कि आपके ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करे. Now when you talk about description of an object, so basically we are talking about two important things. ठीक है. So when I say description of an object, so it consists of or I can say the description consists of what? दो चीजें रहेंगी. It consists of, come on. Yes, it consists of properties of the objects and और क्या? Come on, क्लास के अंदर क्या क्या होता है? दो चीज तो होती है. एक प्रॉपर्टीज होती है और दूसरा क्या होता है? Member functions. So those member functions or methods, they are called as behavior. थोड़ा हम उसको conceptual terms में बोलते behavior. So properties are basically
your attributes of the object, and behavior, basically the methods or the functions which are going to perform some operations on the properties or you can say attributes of the object. कोई भी एक specific object आप लो, take an example of your mobile phone. So your mobile phone is one object, fine. अब इस मोबाइल फोन के जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी एट्रीब्यूट्स है, टेक एन एग्जांपल ऑफ योर स्क्रीन साइज. तो स्क्रीन की जो साइज है, दैट साइज इज वन प्रॉपर्टी ऑफ योर मोबाइल फोन, दैट इज वन एट्रीब्यूट ऑफ अ मोबाइल फोन. ठीक है. अब ये स्क्रीन के ऊपर जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, यू आर फॉर एग्जांपल डिमिंग योर स्क्रीन और यू आर इंक्रीजिंग द brightness of your screen, okay, you are resizing your screen. So these are the operations that you can perform on your screen, fine. So this becomes the behavior. This becomes what? Behavior. अब ये आप प्रॉपर्टीज और बिहेवियर का कलेक्शन करके इनको अगर किसी चीज में लिख दो, इसको आप एक टेम्पलेट बना लो या फिर आप इसको एक ब्लूप्रिंट बना लो, तो दैट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एज अ क्लास. That description is called as a class. एक बार डिस्क्रिप्शन हो गया, आपकी क्लास बन गई, फिर इसके बाद में आप इस क्लास को इंस्टेंशिएट करो. इंस्टेंशिएट करो मतलब कि इसका एक ऑब्जेक्ट बना लो. जैसे इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया, तो दैट ऑब्जेक्ट इज बेसिकली समथिंग विच ऑक्युपाइज द स्पेस विच फिजिकली एग्जिस्ट. वो अभी आपका ये मोबाइल फोन सामने है, तो दिस मोबाइल फोन इज वन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट फिजिकली एग्जिस्ट. इट रिक्वायर्ड सम स्पेस, फाइन. लेकिन इसी मोबाइल फोन का अगर हम डिस्क्रिप्शन ऑन पेपर लिखेंगे, तो दैट सिंपली बिकम्स अ क्लास, दैट बिकम्स अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट, फाइन. लेकिन जब तक उसका आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हो, जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हो, दैट्स ऑफ नो यूज. दैट्स ऑफ नो यूज. सो दैट इज अबाउट योर क्लास and that is the basic things. I hope that you people all already knowing about it. और जो हमने डिस्कस किया खाली उसको हमने थोड़ा रिवाइज किया. Now in C++, there is a way to define a class. In Java, there is a way to define a class. Likewise, in Python also, you have a specific way to define a class. Class को define करने का एक तरीका होता है Python के अंदर. Fine. अब वो क्या तरीका है? You need to make use of a class keyword. So CLASS, I would be making use of a class keyword, space, then the name of a class. ठीक है? Class का नाम. For example, I want to create an employee class, so I would be writing EMPLOYEE. So this becomes my employee class. Employee class का जो E है वो मैंने capital लिखा हो. This is a basic convention of defining a class. So I'm writing it as capital E. ठीक है? इसके बाद में मुझे क्या करना है? मुझे ब्लॉक स्टार्ट करना है. So I would be putting semicolon and then now I can have the properties of my object and I can have the behavior of my object. Properties and behavior of the objects का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर अब हमारे attributes आएंगे और हमारे functions आएंगे. For example, I am defining one function. Say I want to set the properties of the employee. मुझे employee की properties को set करना है. So for example, I would be defining a function for it. So def keyword use करेंगे और मैं इसको नाम देता हूँ set property और simply set और set prop. ठीक है. जो भी क्लास के जो फंक्शन होते हैं, क्लास के जो मेथड होते हैं, उसको हमेशा जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है. आई रिपीट, जो भी क्लास के मेथड होते हैं, जो भी क्लास के मेंबर फंक्शन होते हैं, वो सभी मेंबर फंक्शन के अंदर जो पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है बाय डिफॉल्ट वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. और ये ऑब्जेक्ट को हम बाय कन्वेंशन या बाय प्रैक्टिस हम इसको नाम देते हैं सेल्फ. ओके. अब ये जो सेल्फ वर्ड है, ये सेल्फ वर्ड जरूरी नहीं है कि इसको सेल्फ ही नाम देना है. आप इसको माई सेल्फ भी नाम दे सकते हो, आप इसको योर सेल्फ भी नाम दे सकते हो, आप इसको अवर सेल्फ भी नाम दे सकते हो, या कोई भी वैलिड नेम दे सकते हो. बट एज आई सेड यू दैट इट इज अ प्रैक्टिस एंड इट इज अ रिकमेंडेशन वे दैट द फर्स्ट argument is always the object of the same class or the reference to the object of a same class. Better to say like that. And we will call that as self. हम उसको self बताएंगे. ठीक है.
अब एज्यूम करो कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमको क्या क्या लेना है। एम्प्लॉय क्लास के अंदर हम एम्प्लॉय नंबर लेंगे, हम एम्प्लॉय नेम ले लेंगे, हम एम्प्लॉय की सैलरी ले लेंगे, ठीक है, और उसका डिपार्टमेंट कुछ ले लेंगे। तो आई विल बी गोइंग फॉर एम्प्लॉय नंबर, so let me call it as NO. I need not have to define the type. Define करने की जरूरत नहीं है type को. Let me call it num. Better. Then I would be going for name of an employee. Then I will be going for the salary of an employee. Then I will be going for the department of an employee. ठीक है? अब यहाँ पर मुझे property set करना है. तो self is a reference to the object. ये उस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस है जो कि इस मेथड को कॉल करेगा, जो कि इस बिहेवियर को यूज करेगा। तो मुझे लिखना है सेल्फ डॉट, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट है वो यूज करना है, ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट यूज करना है। तो मुझे लिखना है सेल्फ डॉट, और ऑब्जेक्ट का पहला एट्रीब्यूट फॉर एग्जांपल है मैं एम्प्लॉय नंबर, सो EMP नंबर, ठीक है, इक्वल्स टू नम, then self dot name or ename better equals to name, then self dot cell equals to cell, and then self dot department equals to department। बस इतना ही हम काम करेंगे। एक और हम यहाँ पर फंक्शन ले लेते हैं जो कि डिस्प्ले का काम करेगा। तो डिफाइन एंड आई वुड से डिस्प्ले, तो यहाँ पर हम सिंपली डिस्प्ले करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट सेल्फ होगा, तो हमने सेल्फ ले लिया, और कोई आर्ग्यूमेंट हमें पास नहीं करना है, तो कोलन, एंड देन हियर आई वुड सिंपली प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉय। तो प्रिंट employee and print, sorry, the tab space, I would say employee number, so self dot EMP number, comma, on a new line with tab space, self dot ename, comma, on a new line with tab space, self dot cell, comma, on a new line with tab space, self dot department। ठीक है। Okay, so we have displayed this much, and now I come out of my class. अब मैं अपनी क्लास से बाहर आ जाता हूँ। देखो हमारी क्लास में क्या क्या है। हमारी क्लास का नाम है एम्प्लॉय, और हमारी क्लास में पहला हमने मेथड या पहला हमने फंक्शन लिया। पहला मेथड में तो पहला मेथड लिया सेट प्रॉप, मतलब कि प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए। तो फंक्शन है वो मेथड है, तो डिफाइन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो डेफ सेट प्रॉप, क्लास के जितने भी मेथड्स होते हैं उसके अंदर जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा जो होता है वो रेफरेंस होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। उसी क्लास के ऑब्जेक्ट का वो रेफरेंस होता है, जो ऑब्जेक्ट यूज होने वाला इस मेथड को कॉल करने के लिए उस ऑब्जेक्ट का वो रेफरेंस है, ठीक है। अब ये जो रेफरेंस है ना, इस आर्ग्यूमेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट वैलिड नेम होना चाहिए। ये जनरल प्रैक्टिस है कि उसको हम सेल्फ बोलते हैं या उसका नाम हम सेल्फ रखते हैं, तो वील कॉल इट एज सेल्फ। देन कॉमा, फिर उसके बाद में जितने भी पैरामीटर आपको चाहिए, जितने आर्ग्यूमेंट्स आपको चाहिए उतने आर्ग्यूमेंट आप। अब यहाँ पर हमारा आइडिया क्या है कि एम्प्लॉय क्लास में हमको 4 एट्रीब्यूट्स है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसके लिए 4 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किए, नंबर, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट सेट किया। आयशा, कैन यू कीप योर माइक म्यूटेड प्लीज। हमने नंबर को कैसे सेट किया? एम्प्लॉय नंबर पे, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो हमने तरीका क्या यूज किया है, जो रेफरेंस है वो रेफरेंस को हमने यूज किया, ये सेल्फ रेफरेंस है तो सेल्फ को हमने यूज किया, डॉट ऑपरेटर यूज किया, और फिर इसके बाद में हमने एम्प्लॉय नंबर डाल दिया, तो एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू नाम, फिर ई नेम इक्वल्स टू नेम, सेल डॉट सेल इक्वल्स टू सेल, सेल डॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स टू डिपार्टमेंट। नाउ यू मे हैव अ क्वेश्चन, कैसा ये एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सेल, डिपार्टमेंट, ये तो हमने कहा पर कुछ डिक्लेयर किया ही नहीं, we haven't declared it and we are simply using it. So how it is done? So that is how it is done in Python. In Python, when you use the variable, when you use the object, you need not have to define it. It is not compulsory that you need to first declare the variable and then use it. ठीक है, वही सिंपल कंसेप्ट हम यहाँ पर भी फ्लोट आउट कर रहे हैं, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भाई फंक्शन के अंदर डायरेक्टली यहीं पे डायरेक्टली इनिशियलाइज करो हमारे जो डेटा मेंबर है, या फिर आप कह लो कि एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास है, उनको यहीं पे इनिशियलाइज करो। फाइन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सेल्फ कीवर्ड के साथ में, सॉरी नॉट कीवर्ड, सेल्फ वर्ड के साथ में जो भी यहाँ पर आ रहा है, दैट बिकम्स योर एट्रीब्यूट। आई रिपीट, सेल्फ वर्ड के साथ में डॉट ऑपरेटर लगा के जो भी आएगा वो आपका एट्रीब्यूट बन जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट डाल दूं, सेल्फ डॉट लोकेशन equals to, and here I put up say Mumbai, done। अब यहाँ पर क्या हो गया, लोकेशन नाम का भी एक और एट्रीब्यूट आ गया, भले हमने लोकेशन की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं पास की, यहाँ पर हमने डिफॉल्ट वैल्यू ले ली मुंबई, ठीक है, तो यहाँ पर सेल डॉट लोकेशन इक्वल्स टू मुंबई। एक और पॉसिबिलिटी है, फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पर मैं कॉमा लॉक इक्वल्स टू, इन डबल कोट्स आई एम राइटिंग मुंबई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लोकेशन की वैल्यू यहाँ पर सेट होंगी, लोकेशन के ऊपर लॉक की वैल्यू सेट हो जाएंगी, अगर लॉक कुछ पास हुआ है तो ठीक है, मुंबई ओवरराइट हो जाएगा, अगर लॉक पास नहीं हुआ है तो लॉक के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या चले जाएंगी, मुंबई, सो डिफॉल्ट लोकेशन विल बिकम मुंबई, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू द थिंग्स। आई एम रिमूविंग इट नाउ। नाउ लेट मी गो विद दिस। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे अपनी इस क्लास को यूज करना है। अब क्लास को यूज कैसे करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन हुआ आपका, दिस इज सिंपली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ओके, इट्स अ ब्लूप्रिंट। अब इसको यूज करने के लिए आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इसे यूज करने के लिए हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अ वेरी सिंपल एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग इट वाज to define or to declare the object. For example, I say E equals to employee, and then opening closing parenthesis. तो अब ये क्या बना, E becomes an object of an employee class. E becomes an object of an employee class. अब मुझे E की प्रॉपर्टीज अगर सेट करना है, I would say E dot set prop। अब मुझे यहाँ पर कुछ चीजें पास करनी है, सेल्फ क्या मैं पास कर दूंगा, यहाँ पर सेल्फ पास करने की जरूरत है, सेल्फ पास करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ई ऑब्जेक्ट है ना, ई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ही सेल्फ में चला जा रहा है, ई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेल्फ में चला जा रहा है। तो अभी हमको सेट टॉप को कितने आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, 1 2 3 4। फर्स्ट इज द नंबर, देन नेम, देन सैलरी, देन डिपार्टमेंट। तो फॉर एग्जांपल माय एम्प्लॉय नंबर इज 7, माय एम्प्लॉय नेम इज सपोज नववर, हाँ, then my employee salary is suppose 65,000 per month, comma department is testing, ठीक, done। Then I would simply like to print out the values to check कि भाई सब बराबर चल रहा है, तो I would say e dot display, ठीक है। अब हमने करना क्या है, तो व्यू पे जाकर स्टार्ट करना है, और टर्मिनल में आकर हमें पाइथन session on class.py। Okay, so as we can see what happened, employee की information display हो गई, यहाँ पे employee आया,
यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर आ गया 7, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम आ गया मुनव्वर खान, देन द सैलरी एंड देन द डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर टाइप कर दो, यहाँ पर नेम कर दो, यहाँ पर सैलरी कर दो, यहाँ पर डिपार्टमेंट कर दो। So that is all can be done. Here I can write employee number, here I can write employee name, employee salary, and then employee. Just to improve the presentation. And here it goes, the employee information, employee number is 7, employee name is Munawwar Khan, employee salary is 65,000, and employee department is testing. ठीक है? Is that clear to all? Yes sir. Sir above Yes, local. सर वो आपने ई इज इक्वल टू एम्प्लॉय अगर वो नहीं लिखेंगे और खाली ब्लू प्रिंट को अगर मतलब रन करेंगे तो क्या आएगा? वापस से बोलो, क्वेश्चन नहीं समझ। सर ये आप लिखे ना ई इज इक्वल टू एम्प्लॉय क्लास सबसे नीचे, अगर उसको नहीं लिखेंगे और ऊपर का खाली रन करेंगे तो क्या होगा? E equals to employee, इसको अगर मैं कमेंट कर दूं तो you mean to say this? यस सर। तो अब E जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना एम्प्लॉय क्लास का। How your okay, so you want to check whether the Python is so smart कि वो बराबर से समझ जाए कि ये एम्प्लॉय क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, अकॉर्डिंगली उसको यूज करे। Let me save, and if I try to do this, so it says it gives us an exception, and that exception is name error। ठीक है, नेम एरर, उसको नहीं समझ में आता कि भाई ये ई क्या है, आपका ई डिफाइन नहीं है। फाइन, पाइथन विल टेक, अभी आप बोलोगे सर वो तो आई इक्वल्स टू 10 लिखा था आपने पहले कभी, तो तब तो पाइथन ने नहीं बोला कि आई जो है वो इंटीजर है, या आपने जब लिखा आई इक्वल्स टू 10.5 तब भी पाइथन ने नहीं बोला कि आई फ्लोट नहीं है या फ्लोट है, उसने अपने आप जान लिया। तो वो इसके लिए होता है कि दो ज्यादा बिल्डिंग टाइप्स। फाइन, और ये जो है ये अपना डिफाइन किया हुआ टाइप है। तो सिंस दिस इज अ टाइप व्हिच इज डिफाइंड बाय अस, पाइथन विल नॉट गेट इनटू इट। ओके, वी नीड टू एक्सप्लिसिटली से क्या ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, देन ओनली वी विल बी इन अ पोजीशन टू मेक यूज ऑफ दिस फंक्शंस, बिकॉज दिस फंक्शंस बिलोंग्स टू दिस क्लास, एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, अब ये फंक्शंस इस क्लास के अंदर बिलोंग कर रहे, जब हम उन फंक्शंस को कॉल करेंगे तो हमें उस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करना है। फाइन, अब उसे यूज करने के लिए हमें बताना तो पड़ेगा कि भाई ये है क्या, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ आवर एम्प्लॉय क्लास, देन ओनली दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन अ पोजीशन टू एक्सेस द एम्प्लॉय क्लास, अदरवाइज द ऑब्जेक्ट वोंट बी इन अ पोजीशन टू एक्सेस द एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पर, तो हमने इस तरीके से एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, और डिक्लेयर करने के बाद में उस ऑब्जेक्ट को हमने यूज किया। यूज किसके लिए किया, एक तो हमने उसकी प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए यूज किया, और फिर उसी की प्रॉपर्टीज को हमने डिस्प्ले करने के लिए उसे यूज किया। नाउ देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड, कि यहाँ पर ये जो हमने फंक्शन कॉल किया है, ये फंक्शन को हम एक और तरीका देखते कॉल करने का, whether that can be done। Control C, I have to get Control V, and I comment this out, and I write the name of my class, employee dot set up, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ना वो मैं ये ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। Let's see, let us see, can we do this? Okay, so yes, we can do this, this is happening and this is possible। अब जो है ना, अब हमको सही से समझ में आता है कि भाई ये सेट ऑफ मेथड जो है इसका फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है। हमने यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास नेम यूज किया सेट ऑफ मेथड को कॉल करने के लिए, और उसके अंदर अब हमने जो पहला आर्गुमेंट पास किया ना वो हमने ऑब्जेक्ट पास किया। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये एम्प्लॉय क्लास का ही हमारा ऑब्जेक्ट है।
अब हमने ये ऑब्जेक्ट जब पास किया तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेल्फ में आ गया, और जब ये ऑब्जेक्ट सेल्फ में आ गया तो हमने वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज कर करके उसकी प्रॉपर्टीज को सेट किया। तो सेल्फ डॉट एम्प्लॉय नंबर, सेल्फ डॉट ई नेम, सेल्फ डॉट सेल, सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। जो भी वैल्यू हमने पास की थी वो वैल्यू यहाँ पर एक्टिवेट होगी, उसके ऊपर अप्लाई होगी, उससे वो इनिशियलाइज हो गया। सो दिस इज ऑल्सो वन वे। दिस इज मोर ऑफ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल of using it, or I would say not pure object oriented style. It may go like that, but then to make it quite simple, to make it easy, generally practice क्या है, object name dot method name। बस हमें याद ये रखना है कि जो पहला जो आर्ग्यूमेंट है पाइथन के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट वही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होता है, ठीक है, किसी और ऑब्जेक्ट का भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं E1, एक और ऑब्जेक्ट ले लूं E1 इक्वल्स टू एम्प्लॉय, तो अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है E एंड E1। अब मैं यहाँ पर पास करता हूँ E, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले करता हूँ E1। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? आउटपुट आया यस प्लीज। तो E1 एम्प्लॉय के इक्वल है और E भी एम्प्लॉय के इक्वल है सर, मतलब वो आउटपुट क्या है? जैसा आउटपुट आया था वैसा आउटपुट आएगा। यस सर। Yes, sir. ये आउटपुट में आएगा। लेट अस सी। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट EMP नंबर। देखो क्या हो रहा है, E1 डॉट डिस्प्ले कॉल हुआ, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई वो जो आपका ऑब्जेक्ट है ना E1, वो E1 के अंदर ना तुम्हारा ना ही एम्प्लॉय नंबर है, ना ही एम्प्लॉय नेम है, ना ही एम्प्लॉय सैलरी है, और ना ही एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। बोले आप जबरदस्ती इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। द आइडिया इज what is happening, you are initializing one object and you are trying to display another object. Every object has its own copy of its state or of its properties. हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है अपनी, ठीक है, उनकी अपनी अपनी कॉपीज होती है। हम क्या कर रहे हैं, क्या एक ऑब्जेक्ट की कॉपीज को सेट कर रहे हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट की कॉपी को डिस्प्ले कर, तो ऑब्वियसली वो डिस्प्ले नहीं होता। पाइथन में एक और स्टेप आगे काम होता है, वो ये होता है कि यहाँ पर जब आपने ऑब्जेक्ट ई को यहाँ पर पास किया और उसकी प्रॉपर्टीज को सेट की, तो यहाँ पर इसी फंक्शन के अंदर ही आपके ये जो नेम्स है ना, ये इनिशियलाइज हो रहे हैं, आपके जो एट्रीब्यूट्स है ना वो इनिशियलाइज हो रहे हैं। इनिशियलाइज हो रहे मतलब क्रिएट भी हो रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, क्या E1 ऑब्जेक्ट को यूज करके जब आप डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो यहाँ पर डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ E1 के लिए, और जब यहाँ पर E1 का एम्प्लॉय नंबर एक्सेस करने की बात आई तो पाइथन बोलता है कि वो तो है ही नहीं, बिकॉज E1 ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड टू सेट द प्रॉपर्टीज। तो E1 ऑब्जेक्ट के ये जो एट्रीब्यूट्स है क्रिएट ही नहीं हुए। फॉरगेट अबाउट कि उसके अंदर वैल्यूज नहीं है, वो क्रिएट ही नहीं हुए। तो वो क्रिएट ही नहीं हुए और आप उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई इट सेज कि इट हैज नो एट्रीब्यूट। सी एरर, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट EMP नंबर, वो एट्रीब्यूट ही नहीं है। ओके, फॉर द ऑब्जेक्ट E1, for the object E it is there. So if I change it, I make it E, so it is there. Likewise if I set E1, अगर मैं E1 को सेट करता हूं, सॉरी, और मैं E को डिस्प्ले करने जाऊंगा, सेम एरर, सेम इशू, सेम प्रॉब्लम। Same error, same problem, because what's happening, I am initializing the attributes for E1 and I am trying to display the attributes for E. So here it should be E1. अब कोई एरर नहीं आना चाहिए। मैं ऑब्जेक्ट E1 को इनिशियलाइज कर रहा हूँ और उसी को डिस्प्ले कर रहा हूँ, so it should get display property. Okay, so it is getting display property. Now
what if I want to set the attributes at the class level? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक क्लास लेवल पे आऊंगा और यहाँ पर ये सभी एट्रीब्यूट्स को लेकर डाल देता हूँ. Now I need to remove this tab as well. और मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट इक्वल्स टू some default, salary equals to 0. Then number equals to say 0, something like this. Now if I try to do this, ये भाई मैं E1 को सेट करता हूँ और E को डिस्प्ले करता हूँ. See that carefully. I am setting the object E1. I am setting the properties of the object E1, and I am trying to display the properties of E. Are you getting it? What's happening? अब हमें एरर नहीं मिला, लेकिन अब क्या हुआ कि उसकी वैल्यूज हमने सेट नहीं की थी, तो जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वो डिफॉल्ट वैल्यूज उस ऑब्जेक्ट. ओके, so now it means that when you have the class attributes like this, I repeat my words, class attributes like this, so these attributes will be created for all the objects of its class. I repeat, ये जो attributes है वो सभी objects के लिए create हो जाएंगे, लेकिन जब आप सेट करोगे इन attributes को, तो किस ऑब्जेक्ट के लिए आप सेट कर रहे हो उसी ऑब्जेक्ट के लिए एट्रीब्यूट सेट होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज सेट होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेट किया E1 के लिए, तो E1 के लिए सेट हुए. यहाँ पर हमने E के लिए डिस्प्ले करने की कोशिश की, तो जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वो डिस्प्ले, जो सेट वैल्यूज है वो डिस्प्ले नहीं हुई. सो आई नीड टू सेट द करेक्ट ऑब्जेक्ट एंड आई नीड टू डिस्प्ले द सेम करेक्ट. Are you getting it? Now I want to make use of another object. I want to set other values for that object. I can do so. या फिर दूसरी स्टाइल में E1 dot set prop, और यहाँ पर employee number 1 and then employee name is suppose Sheikh, and then salary is 55,000, and then department is DevOps. salary उसका भैया 1,55,000. ठीक है, so now I am setting E1, and after displaying E, I would display E1. Done. So now we got two objects. So first employee is having the employee number 7 and all this information, and then second employee having employee number 1 and all this information. So this is how we have two different objects, and we are maintaining the two different states of the two different objects. We are maintaining the properties of the two different objects differently. Okay, so this is how it is done in Python. You are creating the class. You are अच्छा, फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्लास के अंदर इस तरीके से आप जब एट्रीब्यूट डिफाइन करते हो या इनिशियलाइज करते हो, तो यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट्स है इनको हम कहते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स, और ये सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए क्रिएट हो जाते हैं. आई रिपीट, ये सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए क्रिएट हो जाते हैं. अब इसके बाद में हमारे पास एक मेथड है जिससे कि हम प्रॉपर्टीज को या एट्रीब्यूट्स को सेट कर रहे हैं, एंड देन वी आर हैविंग अ मेथड टू डिस्प्ले. फाइन, हर मेथड को, क्लास के हर मेथड को जो फर्स्ट
जो आर्ग्यूमेंट होगा वो बाय डिफॉल्ट that will be the reference of the object which is used to call that method. I repeat, that will be the reference to the object which is used to call that method. ठीक है, इसका नाम आप चाहो तो माई सेल्फ रखो, योर सेल्फ रखो, सेल्फ रखो, कोई भी वैलिड नेम आप लिख सकते हो, लेकिन सेल्फ जो है वो रिकमेंडेड वे है, वो प्रैक्टिस में सेल्फ ही लिखा जाता है वहां पे, इसके लिए हम सेल्फ लिख रहे हैं। फिर सेल्फ के बाद में आपको जितने पैरामीटर चाहिए उतने पैरामीटर आप डाल सकते हो। फाइन, अब यहाँ पर मैंने आपको डिफॉल्ट का भी बताया था, तो मैं वो काम कर देता हूँ, लोकेशन इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट मुंबई, एंड देन आई कैन हैव वन मोर एट्रीब्यूट ओवर हियर, सेल्फ डॉट लोकेशन इक्वल्स टू लोकेशन। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है क्या ऑब्जेक्ट के अंदर आप कुछ एट्रीब्यूट जो है क्लास लेवल पे रखो, कुछ एट्रीब्यूट जो है वो ऑब्जेक्ट लेवल पे रखो। फॉर एग्जाम्पल, I can here I can print the location with the tab space employee location comma cell dot log, and now if I do this, so the default location is now Mumbai because we are not passing the value for that location argument. अगर मैं उसके लिए कोई वैल्यू पास करता हूँ, जैसे कि फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए मैं लोकेशन पास करता हूँ एज पुणे, और सेकंड के लिए पास नहीं करता हूँ, तो फर्स्ट के लिए पुणे होगा, सेकंड के लिए डिफॉल्ट में मुंबई होगा। तो यस, फॉर द फर्स्ट वन इट इज पुणे एंड फॉर द सेकंड वन इट इज बाय डिफॉल्ट मुंबई। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद द थिंग्स। अब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूं E2 इक्वल्स टू एम्प्लॉई और उसका मैं डायरेक्टली डिस्प्ले करूं, कैन समवन टेल मी व्हाट वुड हैपन फास्ट? सर डिफॉल्ट वैल्यू आएगी सर, डिफॉल्ट वैल्यू आएंगे, उसके बाद में लेट मी शो यू। डिफॉल्ट वैल्यूज आई, डिफॉल्ट वैल्यूज के बाद में एरर मिला। क्या एरर मिला? लोकेशन का एरर मिला। ठीक है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट लॉक। व्हाई? बिकॉज दिस लॉक इज अ इंस्टेंस एट्रीब्यूट। आई रिपीट, इट इज अ इंस्टेंस एट्रीब्यूट। देखो, जो लॉक है वो यहाँ पर नहीं है, क्लास एट्रीब्यूट नहीं है। वो कौन सा एट्रीब्यूट है? इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, जो कि सेट टॉप मेथड के अंदर सेट हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। अब यहाँ पर जो ई ऑब्जेक्ट है वो सेट टॉप मेथड को यूज कर रहा है, E1 ऑब्जेक्ट भी सेट टॉप मेथड को यूज कर रहा है। तो E और E1 का जो लोकेशन है वो सेट हो गया, वो इनिशियलाइज हो गया। लेकिन जो ऑब्जेक्ट E2 है, यहाँ पर हमने सेट टॉप मेथड को कॉल नहीं किया, तो जो लोकेशन जो है वो इनिशियलाइज नहीं हुआ, या लोकेशन जो है वो क्रिएट हुआ ही नहीं। लेकिन डिस्प्ले मेथड के अंदर हम लोकेशन को डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई फॉर द ऑब्जेक्ट E2 दिस इज नॉट डन। तो व्हाट कैन बी डन, कि यहाँ पर हम एक और ऐड कर देंगे, location equals to something like this, and if I do this, then that error will go. Yes, done. ठीक है, और यहाँ पर डिफॉल्ट में अब कोई वैल्यू नहीं आ रही है। So this is how you can work with class attributes and instance attributes or instance variables. Class variables बोलते हैं हम, instance variables बोलते हैं। ठीक है, so this is about your class and then Bilal, mute your mic please. आपके बैकग्राउंड में नॉइज बहुत है, आपका कुछ क्वेश्चन अगर है तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, पुट इट इनटू द चैट बॉक्स। कोई एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल्स पे काम ये चालू हो गया, आप बंद कर
हेलो सर। हाँ सर जावा में जैसे स्टैटिक मेथड बनाते थे तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता था, पाइथन में भी वैसा है क्या? स्टैटिक मेथड है ना इसमें भी. Okay, now I got some. There is a static method in this also. So you can make use of static method. जैसे जावा में आपके स्टैटिक मेथड होता है वैसे ही आपके इसमें भी स्टैटिक मेथड होता है. You can make use of static method in Python. But before jumping onto the static method, we will be discussing about constructor. Okay. अब यहाँ पर देखो क्या constructor यहाँ पर जब हमने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया यहाँ पर, तो क्या हमने एम्प्लॉय क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर रखा है? Do we have any constructor in the employee class? No, we do not have any constructor. But still the object of that class is getting created. Okay. अब अगर मुझे ये देखना है कि भाई print employee dot base, just let me see. Now see what's happening here. हमको एक क्लास का नाम यहाँ पर लिख के आ रहा है, लास्ट लाइन, क्लास ऑब्जेक्ट. ओके, व्हाट आई डू, ये सब जो डिस्प्ले है ना, सबको कर देता हूँ कमेंट. So we are getting a single line output and that is class object. Now what's happening कि यहाँ पर हमने यूज किया है, यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया है एम्प्लॉय की बेस क्लास. तो एम्प्लॉय डॉट dunder base. Now dunder base is an attribute in which Python maintains the base class. I repeat, in which the Python maintains the base class name of a given class. तो employee class की base class क्या है वो यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है. तो employee class की base class क्या है, यहाँ पर देखो आप लोग object. ठीक है. तो object जो class है Python inheritance hierarchy के अंदर object जो है सबसे ऊपर की base class है. I repeat, ये सबसे ऊपर की बेस क्लास है. जब भी हम पाइथन के अंदर कोई भी हमारी क्लास डिफाइन करते हैं, तो अगर उस क्लास का कोई बेस क्लास ना हो, तो बाय डिफॉल्ट जब भी किसी क्लास का कोई बेस क्लास ना हो, तो बाय डिफॉल्ट उस क्लास का बेस क्लास क्या बनता है, ऑब्जेक्ट क्लास. उस क्लास की बेस क्लास क्या बनती है, ऑब्जेक्ट क्लास. और इस ऑब्जेक्ट क्लास से उसको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिलता है. आई रिपीट, इस ऑब्जेक्ट क्लास से उसको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिलता है. अब वो कंस्ट्रक्टर कब तक के यूज होगा, जब तक के ये क्लास खुद का कंस्ट्रक्टर ना डिफाइन करे. जैसे ही ये क्लास खुद का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करती है, तो बेस क्लास अपना कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेगी. एंड दैट्स द रीजन हियर द ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग क्रिएटेड. तो हाउ टू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास in Python? Implementing the constructor or working with constructor is straightforward and simple. ठीक है. कैसा है पाइथन के अंदर, ये पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन जब करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन, इट्स अ मेथड. तो उसके लिए आपको डेफ कीवर्ड यूज करना ही पड़ेगा. मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ कंस्ट्रक्टर को, डेफ कीवर्ड यूज करेंगे. इन पाइथन बाकी की जो लैंग्वेजेस होती है सी प्लस प्लस जावा, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर का क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड और अ मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास which has a name similar to its class name. ठीक है. तो एम्प्लॉय का क्लास नेम है तो कंस्ट्रक्टर का भी नाम एम्प्लॉय होगा. बट इन पाइथन इट इज इंप्लीमेंटेड लिटिल डिफरेंटली. पाइथन क्या बोलता है कि डू नॉट मेक यूज ऑफ दैट, इंस्टेड मेक यूज ऑफ अ सिंगल
word or same name for all the classes constructor. किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर रहने दो, उसका नाम यही रहेगा. क्या नाम रहेगा? init. क्या नाम रहेगा? init. अब सिर्फ init नहीं नाम रहेगा, तो उसके आगे तुम्हें लगाना है 2 अंडरस्कोर और उसके पीछे तुम्हें लगाना है 2 अंडरस्कोर. ठीक है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर. ठीक है? Then your parenthesis, and always the first argument of a method of a class is the reference to the object which is used to call that method. So it will be called as self. हम उसको self नाम देंगे. तो हमने यहाँ पर self नाम दे दिया. ठीक है? तो यहाँ पर नाम क्या बना तुम्हारे कंस्ट्रक्टर का? dunder init. मैं क्या बोल रहा हूँ इसको? dunder init. डंडर क्या 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 मतलब होता है? डंडर मीन्स डबल अंडरस्कोर. डंडर मीन्स डबल अंडरस्कोर. ओके, that is called dunder. So dunder init means double underscore init. So dunder init is the name of my method which is my constructor, and the first is your set. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम जो भी इनिशियलाइजेशन हमको करना है कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो हम इनिशियलाइजेशन करेंगे. लेट मी सिंपली प्रिंट समथिंग. am in constructor and my address is id of self. खाली इतना ही करते चलो. एंड लेट्स सी कहाँ कहाँ ये काम होता है. I interpret my code and see what's happening. हमको 2 बार ये लाइन आउटपुट में मिली. am in constructor and my address is 2148016917832. और फिर से वो लाइन डिस्प्ले होती है am in constructor and my address is 2148016973896. ऑब्वियसली दोनों एड्रेसेस अलग अलग है, मतलब कि 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट है. अब ये हो कब रहा है? हमने तो कॉल नहीं किया इनको. ये init मेथड को तो हमने कॉल नहीं किया. अब हमने कॉल भी नहीं किया तब भी ये प्रिंट हो जा रहा है. तो कहाँ पर प्रिंट हो रहा है? कैन यू टेल मी? कम ऑन फास्ट. किस वजह से डिस्प्ले हो रहा है ये? सर e is equals to employee और even is equals to employee जब सेट करें तो. Good, very good. When you are creating the object, the constructor is a method which is automatically called by the interpreter. A constructor is a method which is automatically called by the interpreter. You need not have to explicitly call it. So basically when you are writing like this, e equals to employee, it is something like name of my class employee dot dunder init, and then to this I am passing the object e. It is something like this. ठीक है? हम लोग कितना आसान तरीका यूज करते हैं, equals to employee, that's all done. लेकिन देखो इंटरनली होता वो ऐसे है. Employee, the class name, and then the constructor, and then passing this. Let's see वही काम हो रहा है कि कुछ और हो रहा है. I think I cannot explicitly call it. सर ई को आपने कमेंट कर दिया. किसको? किसको कमेंट? ई को. ये तो उसको कमेंट करके ये करूंगा ना. बट init I cannot explicitly call. अब ये इतना कंफर्म हो गया. So I comment this out. I put it up, and then I am back. So yes, it is working. It is going on nicely. And what I am learning now कि init को हम इस तरीके से explicitly call नहीं कर सकते. So please remove that part. No need to keep it. And now I am
calling two objects, or I'm creating two objects, and for each object, when I create an object, the init method is automatically called, और उसका जो भी काम है उसमें काम कंप्लीट हो रहा है. अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर और भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेटिंग से एम्प्लॉय नंबर, and by default I am setting it to 0 if I do not pass. And यहाँ पर डिस्प्ले के बाद में मैं बोलूंगा self dot emp number equals to emp number. तो व्हाट विल हैपन, क्या एक ऑब्जेक्ट अगर चाहिए तो मैं इस तरीके से डिक्लेयर करूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है मैं एम्प्लॉय नंबर के साथ में डिक्लेयर करूँ. फॉर एग्जांपल 10. देखो यहाँ पर हमने सेट प्रॉपर्टीज में इसको 1 किया है, हाँ, तो वो 1 हो जाएगा इनफैक्ट, ये ओवरराइट हो जाएगा. लेकिन अगर मैं सेट प्रॉपर्टी हटा दूं और मैं दोनों को डिस्प्ले करूँ एक बार, ओके. So this is what happening. I am setting the employee number of the second object as 10, और बाकी की जो है वो डिफॉल्ट वैल्यूज है, क्योंकि उसका जो सेट टॉप मेथड है उसको हमने कॉल नहीं किया है. फाइन, E1 का सेट टॉप मेथड हमने कॉल नहीं किया है, कमेंट कर दिया. So what is happening now? कि now I am able to create an object without passing any argument, and I am able to create an object by passing an argument. ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो एक आर्ग्यूमेंट पास करूँ, अगर चाहूँ तो एक आर्ग्यूमेंट ना पास करूँ. क्यों? क्योंकि हमने हमारे इनिट मेथड के अंदर एम्प्लॉय नंबर एक एडिशनल आर्ग्यूमेंट लिया है अपार्ट फ्रॉम सेल्फ, और उसको हमने डिफॉल्ट वैल्यू एक सेट की है. ठीक है, तो अब हम चाहे तो आर्ग्यूमेंट पास करें या हम चाहे तो आर्ग्यूमेंट ना पास करें. अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू हटा दूं और इसको कंपलसरी आर्ग्यूमेंट रखूं, मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट रखूं, तो क्या मैं अब कर पाऊंगा अपना काम? लेट अस सी. नो, इट थ्रोज एन एक्सेप्शन. उसने एक्सेप्शन थ्रो किया. क्या एक्सेप्शन थ्रो किया? कि भाई जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आप कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे, लेकिन ये आपने जो इनिट मेथड जो डिफाइन किया है इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर, उसको एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, उसको मिनिमम एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट चाहिए. ठीक है, तो यू कैन नॉट डू लाइक दिस. अभी आपके लिए कंपलसरी कि आप कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट, ये कोई ना कोई एम्प्लॉय नंबर पास करो. तो हमने यहाँ पर 12 पास कर दिया. अब अगर हम देखेंगे सो इट विल वर्क, तो इट इज वर्किंग फाइन. अब हमको अगर ऐसा चाहिए कि हम चाहे तो पास करें और ना चाहे तो ना पास करें, तो सिंपल ऑप्शन ये है कि आप इसको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बना दो, इसको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे दो. तो नाउ दिस वे इट विल वर्क. तो अगर आप आर्ग्यूमेंट ना पास करो तो डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर होंगी, आप अगर आर्ग्यूमेंट पास करो तो जो आपने वैल्यू पास की है वो कंसीडर होगा. तो दिस इज हाउ you can handle a constructor in a Python. What is important? A constructor always has a name dunder in it. आपको ये याद रखना है that the constructor in any class, कोई भी क्लास हो, employee, student, vehicle, any class, कोई भी क्लास रहने दो, the method name would be always your constructor method name will be always dunder in it, and there is only one constructor per class. I repeat, there is only one constructor per class. I repeat, there is only one constructor per class. जैसे कि आपके C++ में पाइथन में आप ओवरराइडिंग करते थे कंस्ट्रक्टर की, and you could have multiple constructor, but here that is not required. One constructor is enough. देखो यहाँ पे एक ही कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर हमने वही कंस्ट्रक्टर को विदाउट आर्ग्यूमेंट कॉल किया, उसी कंस्ट्रक्टर को एक आर्ग्यूमेंट के साथ में कॉल किया. अब इसी कंस्ट्रक्टर को हम दो आर्ग्यूमेंट के साथ में भी कॉल कर सकते हैं अगर हमने थोड़ा सा चेंज किया, और इसी कंस्ट्रक्टर को हम n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के साथ में भी कॉल कर सकते हैं विद अ रिक्वायर्ड चेंज. इसी में हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, देन वी कैन कॉल द सेम कंस्ट्रक्टर विद n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. So in Python, per class you can have only one constructor method. That's all. And the name of the constructor method is always dunder init. The name of the constructor method is always dunder init. Is that clear? Any question so far?
सो वो डंडर वाला पार्ट दिखाइए ना एक बार फिर से। मेरे में प्रिंट नहीं हो रहा है। क्या डंडर इन इट? यस सर। क्लास के अंदर रहना चाहिए, क्लास के बाहर नहीं। आप देखो वहां पर, देखो ये डेफ कहाँ पर है, ये डेफ और ये डेफ, ये दोनों सेम इसमें रहना चाहिए, इंडेंटेशन में होना चाहिए। यस सर। आगे कर दिया तो ये जो है वो डिस्प्ले के अंदर चला जाए। अगर आपने इसको बाहर पीछे कर लिया तो ये जो इनिट है वो क्लास के बाहर आ जाए। ठीक है, तो वो चेक करो। यस सर सही है। तो क्या प्रॉब्लम बता रहा है? ये जो लिखा हूँ मैंने डंडर इनिट वाले में, एम इन कंस्ट्रक्टर एंड माय एड्रेसेस, ये लाइन प्रिंट नहीं हो रही है मेरे में। प्रिंट किए हो वहां पर? यस सर। कैन यू शेयर योर स्क्रीन? सर मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ। तो आप किस पे कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? सब पीसी पे, लैपटॉप में कर रहे हैं सर। जस्ट अ मिनट। I am passing a link for the attendance. Meanwhile, you people give the link. 58 students are there. Sorry, meanwhile you give an attendance. And let me stop the recording first.